Okay, so let us start with next question, question number 8, which we don't have to solve anyways. The quantity which does not vary periodically for a particle performing SHM is total energy. आपको पता है acceleration varies क्योंकि हमने already देखा है कि acceleration of the particle at the center is 0 mean position. It is maximum at the extremes plus minus a omega square, correct? We have seen displacement also changes, of course. Particle displacement change नहीं होगा तो particle move ही नहीं होगा. So it changes, periodically changes. Periodically changes मतलब अगर आप एक पोजीशन पे है तो बराबर t के बाद वापस से उसी पोजीशन पे आएगा. Velocity also changes periodically. You know this. Mean पे maximum, extreme पे 0. And what is constant is total energy. So you don't have to do anything here. हमको पता है ये. And it is half k a square. Next question. A particle executes simple harmonic motion with amplitude a. The distance traveled by it in one period is 4a. If the amplitude is a, the distance traveled in one oscillation is one period is 4a. एक period मतलब एक oscillation. So if I say, let us say this is some point P, this is some point Q, you have mean position over here O. अगर आपके पास एक particle है, एक period मतलब एक oscillation, वो अगर suppose वो mean से start कर रहा है, suppose, तो यहाँ से यहाँ तक distance a, वापस यहाँ पे और एक बार a, 2a, और यहाँ पे आके 3a और यहाँ पे आया 4a. एक period मतलब एक oscillation, एक oscillation मतलब कितना distance? 4a. Distance, displacement हो तो 0. The displacement of the particle after one period is 0 because it is back to its original position. So easy. So this is something like CET level 2019, simple questions. Next, a particle is performing a linear simple harmonic motion of amplitude a. When it is midway between its mean and extreme position, the magnitudes of its velocity and acceleration are equal. What is the periodic time of the motion? Good. अब ऐसा आपको बताया है, there is a particle which performs linear SHM when the particle is between, यहाँ से यहाँ का distance आपको पता है x equal to a होता है. When the particle is at midpoint, midpoint मतलब the distance is x equal to a by 2. When it is midway between its mean and extreme, the magnitudes, nothing to do with sign, तो minus लिखना नहीं. The magnitudes of velocity and acceleration are equal. तो उनका बोलने का मतलब ये है कि v is equal to acceleration at x equal to a by 2. Do you remember formula for v? Omega under root of a square minus x square. तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus x square. ये a एम्पलीट्यूड है, ये a एक्सेलरेशन है. और अगर आपको पता है एक्सेलरेशन इज a ओमेगा स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू शुड नो. देन एक और एक गया. अंडर रूट ऑफ a square minus x square. x क्या है? a by 2. So it is a square by 4 equal to a omega, right? Squaring on both sides. तो पहले तो ये निकाल लो. This is root 3 a square by 4, right? Equal to a omega. Then it is root 3 a by 2 equal to a omega a cancel. Omega is 2 pi by time period. और आपको टाइम पीरियड ही बोला है ना. What is the periodic time of the motion? तो t equal to 2 into 2, 4 pi by root 3. तो ऐसा 4 pi by root 3 कहीं है क्या? नहीं है. तो what is wrong? What went wrong? What went wrong? देखो एक काम करो. V equal to a, correct. V is omega under root of a square minus x square, correct. This is a omega square, correct. एक omega cancel, fine. A square minus x square, x कितना था? A square by 4.
क्योंकि हाफ द एम्पलीट्यूड x इक्वल टू a by 2, तो a स्क्वायर बाय 4 करेक्ट है। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर अपॉन 4 राइट। √3a by 2 क्योंकि √3 a स्क्वायर का रूट इज a by 2 करेक्ट। a कैंसल गुड दैट इज फाइन। हाँ स्क्वायर कहाँ किया मैंने, स्क्वायर किया ही नहीं। डिड आई स्क्वायर इट एनीवेयर? What is wrong? Wait a minute. What is wrong? You should know. What is wrong? Basic idea is wrong. Acceleration का formula wrong है. A omega square. Acceleration is A omega square आता है क्या? What is acceleration? I will keep you think 10 times before I tell you the correct solution. Acceleration, what was acceleration? Minus omega square x. तो correct है ना ये? What is wrong? Okay, so let me correct it now. ये आ गया ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। प्रॉब्लम इज दिस कि a ओमेगा स्क्वायर एक्सट्रीम पे होता है। जनरल फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है क्या? एक्स ओमेगा स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है? एक्सेलरेशन इन एसएचएम इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स करेक्ट। यहां पे क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैं माइनस साइन नहीं लिखूंगा। यहां तक क्लियर? इफ दिस इज क्लियर, व्हाट इज एक्स? हो गया? इज दिस क्लियर नाउ? आ गया आंसर। तो 4 की जगह पे यहां पे आएगा अभी 2, तो 2 पाई बाय √3 है क्या आंसर में? ऑप्शन नंबर ए राइट। तो दिस इज वेयर यू कैन गो रॉन्ग, याद रखना। ए ओमेगा स्क्वायर कहां होता है? एक्सेलरेशन कहां होता है? एक्सट्रीम पे। गुड। Right, so let me repeat this question again. Very simple question. सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए। The only important point is that particle is midway between mean and extreme, और उस पॉइंट पे magnitude of velocity and magnitude of acceleration are equal. So at x equal to a by 2, this is omega under root of a square minus x square. आप velocity को in terms of x लिख रहे हो, एक्सेलरेशन याद रखना इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसका मैग्नीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट ए। ए होता है मैक्सिमम वैल्यू, वो होता है एक्सट्रीम पे। सो इफ यू राइट डाउन ए हियर, गए, आंसर विल बी रॉन्ग। एक और ये एक गया, देन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स इज ए बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 4 ओमेगा, ओमेगा को मैं यहीं पे 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख देता हूँ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, एक्स इज ए बाई 2। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 4 विच इज 2 पाई बाई t a बाई 2। दिस इज √3a बाई 2 विच इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड a बाई 2। कैंसल एंड कैंसल एंड कैंसल एंड कैंसल, हो गया आपके पास टाइम पीरियड का आंसर आ गया 2 पाई बाई √3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two pendulums begin to swing simultaneously. The first pendulum makes 9 full oscillations when the other makes 7. The ratio of their length is, तो आपके पास दो pendulum है which start swinging simultaneously. So the first pendulum is making 9 full oscillations and in the same time the second one is making 7. तो आपको पता है कि टाइम पीरियड इज बेसिकली 1/2 पाई रूट ऑफ L बाय G। अब एक ने ज्यादा ऑसिलेशन कंप्लीट की और आपको पता है, यू शुड नो दिस, दैट टाइम पीरियड इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट? एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। दो पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन अलग होना मतलब टाइम पीरियड अलग होना, और टाइम पीरियड अलग होना मतलब लेंथ अलग होना, क्योंकि G तो कांस्टेंट है। Again, remember,
number of oscillations in a given time if they are different. इसका मतलब एक स्लो है एक फास्ट, मतलब टाइम पीरियड दोनों का अलग अलग है. टाइम पीरियड अलग है लेकिन टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एल और जी पे, बट जी तो कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एल पे. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. देन आल्सो as I told you, time period is proportional to 1 upon frequency. It is 1 upon frequency itself. Okay, so time period is 1 upon frequency, and frequency basically tells you how many number of oscillations are there per second. Correct? Clear? तो यहाँ पे आपको मिल गया in short time period is 1 upon frequency, but frequency is proportional to number of oscillation, therefore time period is proportional to 1 upon number of oscillation, therefore you can write down nt equal to constant. देख सकते हो ना, proportionality साइन हटाओगे फिर यहाँ पे constant लिखोगे, तो what you normally do is this. Normally you do t equal to constant by n, तो t into n is constant. इसका मतलब ये n1 t1 equal to n2 t2. कांस्टेंट, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब n1 t1 equal to n2 t2 equal to n3 t3 equal to n4 t4 equal to n5 t5 and so on so forth. यहाँ तक क्लियर? गुड. आई डोंट लाइक टू राइट दिस वे. सही है, गलत कुछ नहीं है, बट मुझे आई एम मोर यूज टू सॉल्व इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज. तो आप भी वैसा करो तो ज्यादा फास्ट होगा. अगर आपको क्वेश्चंस फास्ट करने हैं तो यूज प्रोपोर्शनलिटीज. इक्वेशन नंबर 1. बट व्हाट यू नो इज, you also know time period is proportional to root of length. Correct? Equation number 2. So from 1 and 2, t is proportional to 1 by number of oscillation, but t is also proportional to root of L. Therefore from 1 and 2, root of length is proportional to 1 upon n. Simple. तो अगर इतना समझ में आ गया तो L square is proportional to 1 by n square. सिर्फ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया मैंने, तो 1 by n square. क्लियर? क्या चाहिए हमको? रेशियो ऑफ लेंथ. क्या पता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ गया, लेंथ और नंबर ऑफ ऑसिलेशन का रिलेशन मिल गया, तो L1 by L2 विल बी N2 by N1 का स्क्वायर. N2 कितना था? 7. N1 कितना था? 9. 7 स्क्वायर कितना? 49. ये कितना? 81. 49 is to 81. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A person measures time period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds out to be capital T. If the lift starts accelerating upwards with acceleration g by 3, the time period of the pendulum will be. So before we solve this question, आपको 11th का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए. I don't know how many of you have done this, but at least हमने in detail लिया था last year. Person in a lift, उसका apparent weight कितना होगा, उसका real weight. Okay, good. तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, let us do it now. अब चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो पर्सन हो, इनसाइड अ लिफ्ट. ये एक लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट है. गुड. चाहे वो एक मास हो, लिफ्ट के मोशन से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर लिफ्ट के अंदर, तो उन सब के लिए फॉर्मूलाज विल बिकम द सेम. व्हाट आई एम सेइंग इज अ सिंपल थिंग. मान लो मेरे पास एक मास रखा हुआ है यार. सो आई हैव अ मास व्हिच इज केप्ट इनसाइड द लिफ्ट. सो देयर इज सम मास व्हिच इज केप्ट इनसाइड द लिफ्ट. ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है. ऐसा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे आपने इसके फ्लोर पे एक पेंडुलम लगा के रखा है, ये भी हो सकता है, राइट? या फिर एक पर्सन खड़ा है, वो भी हो सकता है. सबके लिए फॉर्मूलाज सेम बनेंगे. नंबर 1, तो फॉर्मूलाज विल बी द सेम. अब
यू शुड नो वन मोर थिंग, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा डिटेल देख लेंगे. यू शुड नो रियल वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज mg and apparent weight मतलब as it appears to you, या फिर अगर मैंने इस मास के नीचे एक वेइंग मशीन रख दिया होता तो वो जो भी रीडिंग देगा दैट इज apparent weight, that is given by normal reaction. क्योंकि mg is downwards, ये है एक्शन ऑफ मास ऑन द फ्लोर, और फ्लोर करेगा नॉर्मली रिएक्ट. तो फ्लोर पे अगर मैंने वेइंग मशीन रख दिया तो एक्शन ऑन द वेइंग मशीन इज वेट, और जो रिएक्शन है मशीन का दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और जो आप रीडिंग देखते हो दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. तो व्हाट यू मेजर इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट इज apparent weight, apparent as it appears. मैं वापस बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल माई वेट इज 70 किलोग्राम, मतलब 70 इंटू जी 700 न्यूटन, करेक्ट. अब अगर मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूं तो 700 न्यूटन 70 दिखा रहा है, बट व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग इट मे शो लेस और मोर, राइट. मशीन वही है, उसका बैटरी भी परफेक्टली वर्किंग है, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा खा के नहीं खड़ा हूँ, हाँ वैसा ही है. और ना ही मैं लिफ्ट पे खड़े मशीन पे खड़े के कुछ खा रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं, जस्ट स्टैंडिंग. ओनली लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग. सो व्हेन लिफ्ट स्टार्ट मूविंग सडनली थोड़ा वैल्यू चेंज हो गया. तो वैल्यू जो चेंज हुआ जो आप मेजर करते हो वो क्या होता है, एपेरेंट होता है, इट अपीयर्स. रियल वेट क्या है, mg. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए. व्हाट हैपेंस इज, बहुत सारे केसेस है, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी तो रियल वेट इक्वल टू एपरेंट वेट. तो योर रियल वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. इन शॉर्ट नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg. क्यों, सिंपल, ऊपर n है नीचे mg है, खत्म. अब अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, उस केस में भी रियल वेट इक्वल टू apparent weight. But if lift is moving upwards with acceleration a, velocity is not constant, acceleration a, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर. ऊपर कब जाएगा, जब ऊपर का फोर्स ज्यादा हो. तो upward force minus downward force is net force. Upward force minus downward force is net force. कोई ऑब्जेक्ट ऊपर कब जाएगा, जब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, सिंपल. तो अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज नेट. बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नॉर्मल रिएक्शन इज, ये शिफ्ट कर दो, mg प्लस ma, मतलब इट इज mg प्लस a, राइट. तो whenever lift is going up you will always have acceleration due to gravity as g plus a, मतलब acceleration, net acceleration is g plus a. Similarly अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a, नीचे आ रहा है तो फोर्स नीचे का ज्यादा होगा. नीचे का ज्यादा होगा तो मतलब mg माइनस n इक्वल टू एफ नेट लिखोगे, मतलब mg माइनस n इक्वल टू ma लिखोगे, मतलब n इक्वल टू mg माइनस ma होगा, मतलब mg माइनस a होगा, right. So you need to remember this. Net acceleration, net resultant acceleration if the lift is going up is g plus a, and if the lift is going down is g minus a. So that's more than enough for a quick revision. बाकी cases हम देखेंगे नहीं, we don't need it here. So then the lift is accelerating upwards. तो याद रखना एक्सेलरेशन क्या लोगे, g plus a. अब आगे, a person measures a time period of simple pendulum inside a stationary lift. तो पहले केस में लिफ्ट था स्टेशनरी, और आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई रूट ऑफ L बाय G. लिफ्ट स्टेशनरी हो या लिफ्ट मूविंग हो, लेंथ चेंज किया क्या आपने पेंडुलम का, नहीं,
तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। पहले केस में, केस 1 स्टेशनरी लिफ्ट, in case of stationary lift what you have is time period 1 is proportional to 1/√g, क्योंकि पहले केस में लिफ्ट वाज स्टेशनरी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब नेट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। केस नंबर 2 अपवर्ड एक्सेलरेशन, अगर आपके पास अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो T2 will be proportional to 1/√g plus a। प्लस ए कैसे आया मैंने बता दिया ऑलरेडी, बट व्हाट इज a? g/3। उन्होंने क्लियर कट बोला है एक्सेलरेशन इज g/3, और आपको पूछा है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालो यहां से T2/T1। T2/T1 is 1/√g plus a upon 1/√g। Therefore, T2/T1 is √g upon g plus a. G upon g plus a is g/3. G plus g/3 is 4g/3. तो √g upon 4g/3, g कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा यहां से T2/T1 इक्वल टू √3/4। तो T2/T1 is √3/4 मतलब √3/2 मतलब T2 is √3/2 times of T1 है क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन again a simple question. Total energy of a simple harmonic oscillator is directly proportional to square of the amplitude. It is half k a square. None. खत्म। Next question. The path length बताना चाहिए। Path length of oscillation of simple pendulum of length 1 meter is 16 centimeter. The maximum velocity is, take g value as pi square। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाथ लेंथ। मैंने बताया था आपको नॉर्मली दिस साइड इज a एंड दिस साइड इज a, इसको आप बोलते हो पाथ लेंथ a plus a। द डिस्टेंस कवर्ड बाय particle performing simple harmonic motion in one period or in one oscillation is 4a. It is 2 times of path length. Path length मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। इट इज नॉट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन। याद रखना, पाथ लेंथ मतलब जितना ये पाथ है उसका लेंथ नेगेटिव से पॉजिटिव तक। सो हाउ मच a plus a? 2a। तो यहाँ पे गड़बड़ मत करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें हमने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन पीरियड इज 4a, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन पीरियड इज 4a। कैसे? मैंने बता दिया था, यहां से यहां तक a फिर a फिर a और फिर a 4a। ये 2 टाइम्स ऑफ पाथ लेंथ है। पाथ लेंथ इज जस्ट a plus a, तो नेगेटिव से राइट पॉजिटिव एक्सट्रीम तक इट इज 2a। तो आपको इन रियलिटी 2a की वैल्यू बताई है 16 सेंटीमीटर। 4a मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। तो a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax, what is Vmax? a ओमेगा, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। इट इज a ओमेगा। a तो पता है, ओमेगा पता नहीं। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, राइट? लेकिन टाइम पीरियड भी पता नहीं, क्या करेंगे फिर? टाइम पीरियड भी पता नहीं तो क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड आउट टाइम पीरियड? लेंथ दिया है, लेंथ दिया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यस, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। गलत, क्योंकि टी में भी 2 पाई आता है। टी इज 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो ऊपर 2 पाई देख के नीचे लिखना भूल मत जाना।
cancel and cancel. Now you see यहाँ पे a की वैल्यू है 8, लेंथ की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है पाई स्क्वायर, तो इट इज 8/1/पाई, ऊपर गया 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगर गलती से, जस्ट अ मिनट, अगर गलती से इसको 4a लिख देते तो ये बन जाता 4, ये 4 तो यहाँ पे आ गया 4, तो आंसर होता 4 पाई, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट do not do this kind of mistakes. तो 8 पाई आंसर आएगा। For a particle performing SHM, its average speed over one oscillation is, well, by the way, what is average speed? Total distance by total time। तो याद रखना, एंड आई होप कि आपको लीनियर मोशन के या फिर इन जनरल मोशन के बेसिक्स पता है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैं डिफरेंस बता ही देता हूं आपको, इट्स बेटर फॉर यू। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये 0 मार्क में देता हूं, मान लेते हैं यहाँ पे ये 10 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर है, एग्जाम्पल, ओके। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, मतलब 0, इट गोज टू 15 and then comes back to 10, मान लो 5 सेकंड में पूरा हुआ। एवरेज स्पीड जब पूछा होगा, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 15, और वापस से 15 से आ गया 10 पे, राइट? मतलब 15 + 5 20, टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। तो 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। जब वेलोसिटी की बात की होगी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट is a vector from initial position to final position. We don't care ये कहां पे जाके आया, कितना घूम के आया, doesn't matter, फाइनली कहां पे है? 10। तो डिस्टेंस कितना था? 15 + 5 20, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो जब एवरेज वेलोसिटी पूछा होगा तो डिस्प्लेसमेंट विच इज 10 अपॉन टाइम 5, 15 पे गया, वापस 10 पे आया, टाइम तो उतना लगेगा ना। टाइम इज द सेम, टाइम वाज 4, टाइम वाज 4 सेकेंड। तो 10/4 इज 5/2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो सेम ऑब्जेक्ट, सेम मोशन, एवरेज स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फर्स्ट चेक क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। और वन ऑसिलेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड? 4a। अभी देखा, अपॉन टोटल टाइम कितना लगता है एक ऑसिलेशन को? टाइम पीरियड। व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी। तो 4an, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे आपको एवरेज वेलोसिटी बोला होता तो 0, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, लेकिन एक ऑसिलेशन में वापस अपनी जगह पे आ गया, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle performing SHM starts from equilibrium position, मतलब x equal to a sin omega t यूज कर सकते हो if required, and its time period is 16 seconds. After 2 seconds, its velocity is pi meter per second. Amplitude of oscillation is. So first of all, particle starts from mean x equal to a sin omega t. Its time period is 16 second, right? After t equal to 2 second, velocity is pi. Velocity is pi.
तो v इक्वल टू पाई एट t इक्वल टू 2. Amplitude of the oscillation is. So how do you find out amplitude of the oscillation? How will you solve this question? V equal to pi at t equal to 2. क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे इस केस में? हाँ, यस, डेरिवेटिव. ओके, तो इफ यू टेक डेरिवेटिव, यू आर टेलिंग मी अगर x इक्वल टू a sin है तो v is dx by dt. गुड, ठीक है, dx by dt. ओके, फाइन, दैट इज आल्सो ओके. तो v इक्वल टू dx by dt, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t. सही है, ऑल राइट. फिर आपको पता है एट t इक्वल टू 2 v इज पाई, तो v की जगह पे डालोगे पाई. a इज a, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, cos ऑफ ओमेगा इज अगेन 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और टाइम t इज 2. करेक्ट. ये पाई और ये पाई गया, तो यहां बचेगा 1 इक्वल टू 2a बाई टी. 2a बाई टी, लेकिन टाइम पीरियड कितना? 16. cos ऑफ ये 2 इंटू 2 4 पाई बाय टाइम पीरियड इज 16. 1 जा एंड 4 जा, पाई बाय 4 1 जा एंड 8 जा. तो a बाई 8 cos ऑफ पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2. तो a इज इक्वल टू 8 रूट 2. ऑप्शन नंबर डी. गुड. Next question. A particle is performing simple harmonic motion starting from extreme position. Graphical representation shows that between displacement and acceleration there is phase difference of. देखो, पार्टिकल मीन से स्टार्ट करे, पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा होता तो इफ यू रिमेंबर if particle starts from mean, हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखे थे. if the particle starts from mean, of course मैं मीन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में एक्सट्रीम दिया हुआ है मुझे पता है, but we want to see both of this so that you have a quick revision. If the particle starts from mean, a equal to sin omega t, v equal to a omega cos omega t, a equal to minus a omega square sin omega t. तो x मतलब displacement is a sine wave, तो it is a sine wave, something like this. Okay, एम्पलीट्यूड सेम है, मान लेना ये है प्लस a और यहाँ पे है माइनस a, राइट. देन फॉर द केस ऑफ, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट कर रहा था, यहाँ पे या तो आप ओमेगा टी प्लॉट कर सकते हो या तो सिर्फ टी प्लॉट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक. ओमेगा टी प्लॉट किया तो यू विल हैव इन टर्म्स ऑफ एंगल, यू विल हैव दिस एज 0, हियर यू विल हैव pi by 2, here you will have pi, then 3 pi by 2 and then 2 pi. अगर टाइम प्लॉट किया तो 0, then this is t by 4, this is t by 2, this is 3t by 4 and this is t. So up to you if you are plotting omega t or if you are plotting t only, एक ही बात है. Velocity, if you see velocity का आ जाएगा cos, राइट. कॉस मतलब जब साइन की वैल्यू 0 तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, यही तो हमको पता है ना, पता है ये. मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो साइन 0 मतलब कॉस मैक्सिमम. गुड. तो मीन पोजीशन पे मतलब x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी इज a ओमेगा. Or put here, if sin is omega t is 0, sin 0 is 0, x is 0, particle is at mean. Omega t is 0, मतलब cos 0 is 1, velocity is a omega. तो हमने already किया है. I was thinking to skip this question because I thought you already know.
ऐसा, जहां पे पोजीशन 0 वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां पे वेलोसिटी 0, क्योंकि पार्टिकल होगा एक्सट्रीम पे। वापस से जहां पे मीन, अब ये जा रहा है उल्टी डायरेक्शन में, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव माइनस ए ओमेगा। अगेन, अब जब आप बात करते हो किसकी, एक्सेलरेशन की, तो इन केस ऑफ एक्सेलरेशन यू हैव साइन वेव, लेकिन माइनस के साथ, तो यू हैव इन्वर्टेड साइन वेव, ऐसा उल्टा। करेक्ट? मैंने बताया था x में साइन, v में कोसाइन, मतलब फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, क्योंकि साइन और कॉस में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का ही होता है। v में कॉस, a में साइन, मतलब इन दोनों में अगेन पाई बाय 2, तो टोटल x और a में पाई। ये हमने ग्राफिकली देखा है। या फिर x में प्लस साइन है और a में माइनस साइन है, तो देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई। डायरेक्टली भी हो सकता है, पार्टिकल चाहे मीन से स्टार्ट करे या चाहे वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करे, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी? पाई बाय 2। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पाई बाय 2। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पाई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पाई रेडियन। So phase difference between displacement and acceleration is always pi, no matter if the particle is starting from mean or if it is starting from extreme or if it is starting from somewhere else. ये हमेशा true होगा. So that's it for today.